प्राइवेट स्कूल माफिया की बात करते हैं तो हम माफिया इसलिए कहलाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फी स्ट्रक्चर दैट वी हैव। जो फी स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्स्ट्रा मनी है, वो मेरे ख्याल है लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉदर करता है व्हेन वी से द प्राइवेट सेक्टर। We cannot hire them on peanuts. We cannot hire them on 30-32,000. We cannot hire them even on 50,000 or 60,000. To buying and selling, you're comparing it as a commodity. Education is not supposed to be a commodity. It's a basic right of every human being. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. But all I'm saying here is that they should be able to live a life of dignity themselves. You understand what I'm saying? Even हमारा अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो भी वो समझ ही नहीं पा रहा कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं। चीज इतना कुछ बिजनेस और ब्रांडिंग के ऊपर हो गया है कि जी जितना आपका ब्रांड हाई होगा स्कूल का, यू विल चार्ज अ लॉट। आई मीन उतनी ही आपकी फी होगी, उतना ही आपका स्टेटस होगा। Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज हमने अफीफा को अपने साथ बुलाया है। अफीफा इज हेडिंग टू मेन कैंपसेस ऑफ द सिटी स्कूल एंड इसी के साथ प्राइवेट स्कूल्स की आज इनसे बात करेंगे। अफीफा, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? Thank you so much, Shiza. I'm very well, thank you. How about you? Yes, we are fine. Private schools are keeping us fine. तो आज उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, there is always this idea of a private school mafia. प्राइवेट स्कूल तो एक माफिया है। प्राइवेट स्कूल तो जो है ना, एक it's portrayed as a demon. What do you think about that, Afifa? Obviously I disagree, for obvious reason, because देखो, when you're हम जब जाते हैं मॉल्स में, जाते हैं हम ब्रांडेड आउटलेट्स में जाते हैं, we know what we are paying for, right? हम वहां से जो चीज लेते हैं, it is like maybe 10,000 की हो एंड हमें नॉर्मल मार्केट में वो शायद 3,000 की भी मिल रही हो, but we don't complain, right? Because we know कि हम जो पैसा दे रहे हैं, we're getting something out of it. हमें एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है। So I don't know why ये एक हमारे जनरली एक सोसाइटी के अंदर it's a prevailing एक थॉट प्रोसेस अब शुरू हो चुका है कि नहीं, प्राइवेट स्कूल्स जो पैसे ले रहा है, हमने पढ़ाने भी अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में। The irony is that we're going to send them to private schools, we're going to send them to private universities, but we will always crib. ये it's beyond me कि हम ऐसा क्यों करते हैं। I think one of the things which you are saying, yeah, we need private schools because other than what other options we have, what government schools, they are in a disastrous situation या condition उनकी जो है, वहाँ पे तो कोई पढ़ाई या कुछ भी नहीं हो सकता है। And when the private sector came, in Pakistan, and they taken up all the we are going to offer you the quality education. We have hired a very good faculty. Teachers हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे extra curricular, हमारी buildings बहुत अच्छी हैं. So I think that is the reason people start preferring कि जी हम private school में करते हैं. I think one thing which जैसे शिजा भी कह रही माफिया, मुझे लगता है that's because of these expenses. वो जो फी स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्स्ट्रा मनी है, वो मेरे ख्याल लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉदर करता है when we say the private sector. So you see, देखिए उसकी भी justification है ना, when we are hiring teachers, like when we are hiring teachers who have done PhD, when we are hiring teachers who have done MPhil, we cannot hire them on peanuts. We cannot hire them on 30-32,000. We cannot hire them even on 50,000 or 60,000. हमें उनको फिर जो उनकी education उस हिसाब से हमने उनको pay करना है. And when we are paying them, so obviously that is included in the fee structure. We're offering air-conditioned classrooms. We're offering जिस किस्म के हम उनको platforms offer करते हैं. For example, Debating Society of Pakistan and multiple such platforms that we are offering. They all come with money. Unfortunately, they're not for free. So पाकिस्तान में आपको पता है scholarships का वो बहुत वो ट्रेंड ही नहीं है। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं।
और मुझे लगता है रीजन यही है कि जो हम कॉस्ट हमारी आती हैं, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो कॉस्ट भी तो अब हर चीज की बहुत ज्यादा हो गई है. सो इफ यू वांट क्वालिटी देन यू गॉट टू पे फॉर इट. और हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मैं खुद भेज रही हूँ. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी सेंडिंग योर किड्स टू प्राइवेट स्कूल्स, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट. Afifa, I'll just point out two things. Very interesting जो आपने mention किए हैं. First, you're comparing education to buying and selling. You're comparing it as a commodity. Education is not supposed to be a commodity. It's a basic right of every human being. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. Then the other thing is you're saying कि अच्छा, this is something मैंने कभी प्राइवेट स्कूल में ऐसे पढ़ाया नहीं है, मुझे नहीं पता. मतलब मेरे बच्चे पढ़ते हैं बट मैंने खुद कभी टीच नहीं किया उधर. So but I know teachers in this country are not given the status that they deserve. State teachers को कहा जाता है इनको कोई नौकरी नहीं मिली तो इन्हें टीचर रख लिया. ठीक है, टीचर्स जो है उनको पे नहीं किया जाता, and that is because they are not paid well. उनको मतलब कि ओवरबर्डन होती हैं, उनको फजूल पेटी किस्म की चीज़ों के ऊपर. मतलब आई नो आई कैन जस्ट नेम सो मेनी ऑफ द वेरी एलीट स्कूल्स ऑफ लाहौर के जो है, जिसमें टीचर जो है उनको जलील कर दिया जाता है. दे आर नॉट पेड. उनको तो 20,000 की 25,000 की, मतलब कि आप ग्रुप्स वगैरह पे जो हमारे पास ऑनलाइन है इतने सारे, उस पर देखें, यही तो अक्सर रैंट चल रहा होता है कि पे हमें नहीं करते हैं. बट ऑफ कोर्स आप जो है बिकॉज जब आप यहाँ पर होते हैं स्कूल्स के अंदर तो आपके बच्चे होते हैं, तो बच्चों से बथेरी फील ही जाती है एंड एवरीथिंग, एंड दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन दी पे स्ट्रक्चर. अगर तो टीचर्स को पास ये पैसे जा रहे हो एंड उसकी वजह से टीचर्स अपलिफ्ट हो रही हो, नॉट जस्ट के अपलिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना उनको मतलब कि मैं ये नहीं कह रही आप उनको बहुत बिल गेट्स वाले पैसे देना शुरू कर दें, बट ऑल आई एम सेइंग हियर इज कि दे शुड बी able to live a life of dignity themselves. You understand what I'm saying? ठीक है? I देखो जो you know your first point कि it is as a commodity we're selling it. So at this point जब हम प्राइवेट स्कूल माफिया की बात करते हैं तो हम माफिया इसलिए कहलाए जा रहे हैं because of the you know fee structure that we have, right? उसमें कहीं पे भी you know you talk to the parents and they will not talk about the kind of education, the standard of education that is being provided to the children. So the irony is when a parent comes to us and when you know they rant about things कि जी आपकी इतनी ज़्यादा फीस है, ये इस चीज़ का भी charges है, इसके भी charges हैं, but then when we ask them कि all right, tell us, like, are you satisfied by the education that your child is getting? हाँ जी, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो जी आपका काम है ना, वो तो स्कूल का काम है, वो तो एजुकेशन तो आपने देनी है. बट ये जो इस प्लाने आप लोगों ने हमें यू नो खर्चे बता दिए हैं. सो यू सी आई एम currently I've had opportunity to work in different cities and to work with different demographics, and और जो मेरा आइडिया है उसमें ये होता है कि जो अभी करंटली जिस सेटिंग में मैं हूँ, मैं ज़्यादातर छोटे शहरों में अभी पिछला कुछ अर्से का मेरा ये एक्सपीरियंस है, वहाँ पे लोग दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर गेटिंग. दे आर बॉदर्ड अबाउट कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में जा रहा है. दे आर ब्रांड कॉन्शियस पीपल. दे डोंट नो व्हाट वो आते हैं ना, उनको क्या अच्छा जी आपका बच्चा, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? हाँ जी होएगा पता नहीं 1 में या नर्सरी में होएगा पता. That is, you know, these are the masses we're dealing with, and mind you, you know, it's a school which is not affordable by everyone. और हमारे पास उनके 5-5, 6-6 बच्चे, I'm not exaggerating, उनके 5-5, 6-6 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, and the only thing they'd be concerned about is कि जी ये वाला Century का, you know, we have a software, AI software, जिसका जी ये इसके ये पैसे लगा के क्यों भेज दिए. एंड नॉट जस्ट दैट, हमें इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में से भी हमसे ये सवाल किए जाते हैं कि आपने ये फलाना खर्चा क्यों डाल दिया, आपने ये क्यों कर दिया. वो भी यू नो इवन हमारा अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो भी वो समझ ही नहीं पा रहा कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं. I had a very interesting conversation a couple of months ago with a bureaucrat
DC ऑफ आवर सिटी, और उनके साथ मेरी जब हम बात करते करते हमारी बातें हुई, तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को बहुत बदतमीज बना रहे हैं? तो आई वाज काइंड ऑफ टेकन अबैक एंड आई वाज लाइक, देखिए, I don't know what are you referring to as बदतमीजी here. Yes, हम अपने बच्चों को सवाल करना सिखाते हैं, हम बच्चों को इस उम्र से एम्पावर करते हैं to ask questions. हमारे बच्चे टीचर्स को क्वेश्चन करते हैं जब उनको समझ में नहीं आता ना कि अच्छा ये ऐसे है, टीचर बता देगी, तो बच्चा क्वेश्चन करता है कि क्यों है ऐसे, सो मैंने कहा हाँ, सवाल करना हम जरूर सिखाते हैं बच्चों को. इफ दैट इज वो बदतमीजी की जुमरे में आता तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. लेकिन मैंने कहा देखें, इट्स नॉट अबाउट कि हम प्राइवेट स्कूल, आप मुझे बताएं कि एज पेरेंट्स क्या हमारे बच्चे उसी तरीके से पढ़ रहे हैं या वही चीजें फेस कर रहे हैं जो हमने फेस की थी. तो मुझे कहते देखें, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर एज अ DC. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं प्राइवेट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ एंड आप अपने बैच का मुझे बताएं, आपके बैच के कितने बच्चे हैं जो सक्सेसफुल हैं. मैं आपको अपने बैच का बताऊंगी कि मेरे बैच के कितने बच्चे सक्सेसफुल हैं इस वक्त. सो द थिंग इज कि आप गवर्नमेंट स्कूल में, ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बहुत बुरी है या हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं. इट डिपेंड्स एरिया टू एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफ दैट पब्लिक स्कूल एज वेल, एंड इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. लेकिन हमारा यहाँ पे जो बच्चा है ना, अब देखें, इवन अगर लो परफॉर्मिंग लर्नर भी है और एक ही क्लास में हमारे पास लो परफॉर्मिंग लर्नर है, हाई परफॉर्मिंग लर्नर है, द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ. मैं अपने टीचर से पूछती हूँ, जब रिजल्ट हमारे सामने आता है, हमसे भी पूछा जाता है कि जी आपका ये बच्चा, व्हाई इज ही नॉट परफॉर्मिंग. तो जब हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है ना टीचर से, शिजा योर अदर क्वेश्चन कि हम इतना ज्यादा चार्ज करते हैं बट हमारे टीचर्स को कुछ नहीं मिलता. बट आई वुड से इवन छोटे शहरों में भी इस वक्त जो हम और मैं देखिए, जो बहुत प्राइवेट स्कूल, छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका मैं नहीं कहती हूँ, बट जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका तो मैं ये कह सकती हूँ. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई ओन सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर सिस्टम्स एज वेल. दे आर पेइंग गुड टू द टीचर्स, बिकॉज जितना टीचर से हम काम लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली इफ यू डोंट पे देम, तो हमारे पास कोई रुकता ही नहीं है. I disagree with that. I so disagree with that because you see, अच्छा, when I say good pay, I'm not saying 20,000 आजकल पाकिस्तान में तो बिजली का बिल आ जाता है, ठीक है, that is not good pay. आप उनको पे कर रहे हैं. So are you pay, लोग जो है ना, मतलब कि are you empowering women enough कि they should be कि वो आ रही हैं यहाँ पे, पूरा टाइम लगाती है, इतना अपना है, उसकी वजह से आपको क्या लगता है खवातीन की कहीं ना कहीं अपलिफ्टिंग हुई है? बिकॉज मेरा ख्याल ये है कि अगर लेट्स से कि एक सिंगल खातून है, वो पढ़ा के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उसके आगे पीछे कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो उस पे के अंदर अपना घर में चला सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, और उसके अलावा अपने घर के एक्सपेंसेस, आना जाना, ये वो करके वो अपना मेंटेन कर सकती है? और प्राइवेट स्कूल का तो ये भी होता है ना कि आपने एक स्पेशल किस्म का कपड़े भी आपके होने चाहिए, आपकी आउटलुक एक स्पेशल तरह की होनी चाहिए, बिकॉज पीपल जज यू ऑन दोस थिंग्स. तो and quite recently there was also about the uniforms and the books. There are some designated places and shops and businesses, वहीं से आप बुक्स खरीदें, वहीं से आप यूनिफॉर्म खरीदें. अच्छा, मैं ये कह रही थी, एक्चुअली पता है क्या, मुझे वही लग रहा है कि इट्स नॉट एजुकेशन, इट्स बिजनेस. सीरियसली वो हर चीज इतना कुछ बिजनेस और ब्रांडिंग के ऊपर हो गया है कि जी जितना आपका ब्रांड हाई होगा स्कूल का, यू विल चार्ज अ लॉट. आई मीन उतनी ही आपकी फी होगी, उतना ही आपका स्टेटस होगा. आपकी टीचर्स उसी तरह, मतलब वो मुझे लगता है कि एजुकेशनिस्ट कम लगती हैं, लेकिन उनमें फैशन एंड ऑल दीज थिंग्स. और honestly I will tell you, because both of us, I think Shiza and me, both of us from an educational, हम उस वाले लेवल पे हैं जहाँ पे लोग स्कूल से होके आते हैं, तो we have noticed this thing कि इनमें कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती है, बहुत कम. आई मीन मेजोरिटी नहीं, आई एम नॉट जजइंग, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो उनको कुछ लिखना नहीं आ रहा होता, राइटिंग उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. व्हेन यू आस्क देम इन द BBA या उनके ग्रेजुएशन बैचलर लेवल पे, they are so poor in doing this. और मतलब मुझे तो कोई उनमें खास
हाँ कुछ है जो अपने, मुझे लगता है इंडिविजुअली उनके पेरेंट्स या उस बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है कि वो जरा शाइन कर रहे होते हैं, ब्राइट होते हैं इन एवरी टास्क, बट मेजोरिटी तो सारे वही है जो उनको पता है पैसा दे के हमें डिग्री मिल जाएगी। वो वाली जो चक्कर है ना, वो तो मुझे लगता है स्कूल के अंदर भी है। दे आर जस्ट यू नो, उनके पेरेंट्स को भी पता होता है मेरे बच्चे को, अच्छा एक और चीज, मैंने अपने बच्चे को ओवर बर्डन नहीं करना है, हमने इसको इतना नहीं पढ़ाना, ये नहीं करना, बस हल्का हाथ रखो। और वो ये चीजें मैंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आके देखी हैं, ठीक है। माई स्कूलिंग वॉज नॉट फ्रॉम हेयर, और मैं वही बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो मैंने सिस्टम देखा है ना कि पैसा इज एवरीथिंग, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है टीचर की। टीचर कुछ कर भी नहीं सकती, मतलब क्लास में अगर टीचर किसी को कहे तो सही कि किसी बच्चे को तुमने गलत किया है, उसके पेरेंट्स नहीं आ जाएंगे, और पेरेंट्स भी आ जाएंगे और पता लगा कि वो सारे प्रिंसिपल के हो जाएंगे, हम तो सारे बच्चे निकाल देंगे, आपकी तो स्कूल गिरा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सीरियसली हमारा। तो मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम है स्कूलिंग सिस्टम से स्टार्ट होती है। ये जो आपने प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया ना, दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस। कि देखें, हम ऐसा भी होता है कि हमारे, आई वुड टॉक अबाउट माय सिस्टम, की पॉलिसीज इतनी हमारी वो हैं कि जी इफ अ चाइल्ड इज मिसिंग द मिड टर्म, ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फाइनल टर्म कर रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो वो चीजें हैं। बट देन व्हाट हैपेंस इज लाइक व्हाट यू सेड कि वो आ जाते हैं, कई बच्चों को तो वो डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स लेके आ जाते हैं कि जी हमारा बच्चा तो नहीं, ही वोंट अपीयर इन द एग्जाम बिकॉज ही इज सिक और दैट, एंड दे आर नॉट सिक, दे जस्ट हैव दिस कि हमने अपने बच्चे को बर्डन नहीं करना। सो मच सो हम, आप जो बात करें ना कैरेक्टर बिल्डिंग की, आप जो बात कर रही हैं कि डिसिप्लिन नहीं होते, जब हम डिसिप्लिन करते हैं तो भी पेरेंट्स आ जाते हैं कि जी नहीं बच्चों को ऐसे मत कहें, देखें जी बच्चों को ये मत कहें, हमारे बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं और ये हैं। तो मेरा फिर एक उनको जवाब होता है, द थिंग दैट आई टेल देम इज कि जी you don't want your child, you don't want us to discipline your child, you don't want us to to actually make him come on to that standard जो कि हम एक उस पे करते हैं कि मिनिमम ये है। आप नहीं चाहते, फाइन, we're not going to do it, we're getting the fee anyway, but हमारे पास बच्चा शायद 1 साल है, 2 साल है, और बट आपने सारी जिंदगी इस बच्चे के साथ गुजारी है। सो आज जिन चीजों के ऊपर आप हमारे ऊपर आ रहे हैं ना कि जी मेरे बच्चे को बर्डन ना करे, मैंने कहा जी कल को इन बच्चों ने जिंदगी में निकलना है, इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। हम लोग बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना शुरू करते हैं फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, ठीक है। और उस अर्ली एज के बाद जब हमारा बच्चा, हमारा ये एक होता है कि हमारा बच्चा जब CIEs में पहुंचे, लाइक हमारे साथ तो लास्ट उसका वही होता है, तो तब तक वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर के हिसाब से पहुंचे। बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वो ये जो ट्यूशंस है, जो ट्यूशन कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल सिस्टम्स ही काफी सारे, ऑल्दो आई एम अगेंस्ट इट, क्योंकि ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद ट्यूशन ली है ना अपने बच्चों को कराई है। बिकॉज देखिए, मैं आई टेल द पेरेंट्स कि हमारे पास भेजते हैं आप तो इतना पैसा दे के भेजते हैं, तो फिर उस नर्सरी के बच्चे को ट्यूशन क्यों भेज रहे हैं आप? आई मीन उस बच्चे ने क्या करना है, उसने क्या सीखना है? बट वो देखें, हमारा एक जो सिस्टम है, इट इज अ वेरी वेल थॉट ऑफ सिस्टम, लाइक जो करिकुलम है, और वो मैं इसलिए कहूंगी, दिस इज नॉट द फर्स्ट सिस्टम और द ओनली सिस्टम आई वर्क फॉर, आई हैव वर्क फॉर वेरी गुड सिस्टम्स, आई हैव आल्सो स्टडीड इन दोस सिस्टम्स एज वेल। लेकिन मुझे इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो एकेडमिक्स के ऊपर इनका फोकस है, दैट इज समथिंग व्हिच हैज केप्ट मी विद द सिस्टम फॉर पास्ट 4 years, बिकॉज व्हाट हम लोग देखें, वही आपकी वाली बात है कि हर उसमें पैसे दे के एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास हम आगे बच्चों को करते जाते हैं कि जी जब वो यूनिवर्सिटी में जाए, नॉट आवर हेडेक एनीमोर। बट इधर हमारा ये है कि अगर बच्चा जिससे फर्स्ट ईयर हम उसको ये वो प्रिविलेज देते हैं कि अच्छा ठीक है, सिंस हिज इज फर्स्ट ईयर इन द सिस्टम, किसी और सिस्टम से आया एडजस्ट होते हुए, हम फर्स्ट ईयर उसको एक कंपैशनेट ग्राउंड पर प्रमोशन दे देते हैं। बट अगर वो बच्चा 2 साल से हमारे पास है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, यू हैव नो आइडिया कि सिर्फ उस टीचर का नहीं, मेरे एज अ हेड मेरी भी पूछ होती है। ये 2 साल से बच्चा आपके पास था, आपने किया क्या? व्हाट डिफरेंस हैव यू मेड? बच्चा तो जहां से भी आया है, घर उसका जैसा भी है,
पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है, व्हाट हैव यू डन? When a person is, जब आपको पता होता है ना अकाउंटेबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. हम टीचर्स जो है ना, वो मेरे पास है ना, इस साल बस मैं पास करके आगे भेज दूं, अगला टीचर चीखता रहता है कि भाई सीख के नहीं आया, फाउंडेशन ठीक नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. और जो मुझे लगता है कि नाउ इफ आई कनेक्ट कि माफिया क्यों कहा जाता है, बिकॉज अगेन हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट? हम एक स्कूल से अगर मैं बच्चे को बहुत उस पर करके एक्सपेल करूंगी ना, तो दूसरा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बड़े खुशी खुशी उस बच्चे को ले लेगा. यहाँ पे कोई रिवाज नहीं है कि जी अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बच्चे के पास नहीं है तो आप बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकते. बहुत खुशी खुशी एडमिशन करते हैं, which is सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है ना. देखिए हमारे छोटे शहरों में हमें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, बट बड़े शहरों में, जो मुझे पता है लाहौर में, इस्लामाबाद में, एक स्कूल से बच्चे को डिसिप्लिनरी उसके ऊपर निकाला जाता है, दूसरे में वो बड़े अच्छे उसके ऊपर बड़े अच्छा उसको केटर कर दिया जाता है. सो इट्स आई थिंक that is the thing कि schools जो हैं उनको, my point here being कि schools को एक business बनाया हुआ है. It's a commodity that is being traded. It is not something that is noble, that is supposed to be, oh my god, this is education and it's just like any outfitter की आपने jacket ले ली या आपने school से जाकर पढ़ लिया. Do you understand what I'm saying? So you're comparing these two things, and that is something, मेरा ये ख्याल है, what I want to add here is a bit के schooling जो है, जो आपकी education है, it is something very noble, और इसकी वजह से societies change होती हैं. बट हमारा जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हो आपका या आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, वट एवर इट इज, एजुकेशन इटसेल्फ जो है, इट शुड बी, सोसाइटी को इसको चेंज करने की जरूरत है. अभी आपने पहले भी कहा कि कि पेरेंट्स आते हैं, उनको तो पता नहीं होता कि उनके बच्चे कौन सी क्लास में है. ठीक है ना, हमें पता है हमारे लिटरेसी रेट क्या है, वी नो हमारा क्या हिसाब चल रहा है हर चीज में. ठीक है, सो वी ऑल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो बेसिकली ये जहालत है ना, वी आर सो ब्रांड कॉन्शियस, वी आर सो स्टेटस कॉन्शियस, वी आर सो कॉन्शियस ऑफ ऑल दीज सुपरफिशियल थिंग्स कि हमारा एजुकेशन तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है. सो व्हाट हैज द प्राइवेट स्कूल्स डन, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे तो गवर्नमेंट स्कूल्स ऑपरेशनल ही नहीं है ना. सो व्हाट हैव द प्राइवेट स्कूल्स डन टू educate the masses about, and then a reputation of an educational जो आपके ये सारा सिस्टम है, सेक्टर है, उसको क्या करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि लोग जो हैं थोड़े बेहतर हो जाएं, कम जाहिल हो जाएं, कोई उनमें बेहतरी आए. देखो एक और बात मैं यहाँ पे अफीफा ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये भी है, of course as you are saying, the blame is not on the private sector only, on the school. The blame is on the parents, on the society as well. जिस तरह के ये लोग हैं यहाँ पे, वही बात है, if you try to implement या push a new strategy या भी discipline, या आप अपने बच्चे को इंसान बनाना है हमने इसको इस एज में, या I mean all these things, तो जाहिर है वहाँ से फिर रेजिस्टेंस आती है, आप लोगों को काफी ज्यादा आती है. और फिर वो यही बात है कि अगर स्कूल ने सारे लोगों को बाहर निकाल दिया तो फिर स्कूल में होगा कौन, फिर तो कोई बच्चा नहीं बचेगा ना वहाँ पे. तो स्कूल ने भी तो अपना चलाना है ना, and the repute is also very important. So मेरे ख्याल वही बात है कि as Shiza saying as well कि पेरेंट्स और इस सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए या ट्रेंड चेंज करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स कुछ कर रहे हैं. We are going to continue in the next episode. इसी के साथ हमें आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.